محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ لوگوں سے ملتے وقت مسکرانا، اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر ہٹانا، جب مریض کی عیادت کو جانا تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا، کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ہر سال ریاست میں خانگی ہاسپٹل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ریاستی حکومت پرائیویٹ کے بالمقابل گورنمنٹ ہاسپٹل کی توسیع عمل میں لا رہی ہے۔ بانسواڑہ کے مینا گارڈن میں یوم طب و صحت پر مبنی پروگرام سے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اسپیکر پرشورام سرینواس ریڈی۔ مادھو نگر ریلوے برج کے لیے ریاستی حکومت 60 کروڑ روپے فنڈ سے مختص کرنے پر مرکزی حکومت کی جانب سے 30 کروڑ روپے کیے گئے مختص۔ نظام آباد رورل منڈل کی پالدہ گرام پنچایت کا TSRTC چیئرمین رورل MLA باجریڈی گوردھن نے کیا افتتاح۔ آرمو میں 100 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل میں انعقاد عمل میں لائے گئے یوم طب و صحت پروگرام سے ضلع بیال صدر آرمو MLA جیون ریڈی نے کیا خطاب۔ بودھن میں مرکزی تعلیمی ادارے سے وابستہ کاموں کو تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کرے۔ سست رفتاری کے ساتھ جاری کاموں کا BJP راجیہ سبھا MP پرکاش جاوڈیکر نے جائزہ لیتے ہوئے کیا برہمی کا اظہار۔ کورونا وبا قہر کے دوران طبی عملے کی جانب سے فراہم کردہ خدمات قابل ستائش۔ نظام آباد گورنمنٹ ہاسپٹل میں اربن MLA بیکالا گنیش گپتا نے مریضوں کو فروٹ و حاملہ خواتین کو KCR کٹ کی فراہمی۔ آئندہ منعقد ہونے والے انتخابات میں عوام کانگریس پارٹی کو اہمیت دیں گی۔ نوی پیٹ میں سابق وزیر PCC خزانچی سدرشن ریڈی کی موجودگی میں BRS پارٹی سے وابستہ قائدین نے کانگریس پارٹی میں کی شمولیت اختیار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ 15 جون بروز جمعرات بمقام نصیر چوراستہ احمد پورہ کالونی پر کانگریس پارٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر جلسے کا انعقاد۔ عوام اس جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کرے۔ کانگریس قائدین کی پریس کانفرنس سے اپیل۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پریس میٹ کا مقصد ہے کہ KCR صاحب اور TRS گورنمنٹ کے جو ناکامیاں ہیں بالخصوص مائنارٹی کو لے کر اور مسلمانوں سے جو دشمنی نبھا رہے ہیں اس کو بتانا ہے۔ اور یہ جلسے کے چیف گیسٹ سدرشن ریڈی صاحب، سابقہ منسٹر آف کانگریس پارٹی، اور جناب مہیش کمار گوڑ صاحب TPCC ورکنگ پریزیڈنٹ آف تلنگانہ، اور طاہر بن حمدان صاحب وائس پریزیڈنٹ آف تلنگانہ، مولانا موہن ریڈی صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، کیشو وینو صاحب سٹی پریزیڈنٹ، گڑگو گنگادھر صاحب اور سارے مائنارٹی کے لیڈر موجود رہیں گے۔ اور اس جلسے میں کانگریس پارٹی مائنارٹی کے لیے بہت ہی مفید اور وعدے پہ پکے رہنے والے مینیفیسٹو لے کر آئے ہیں، جس میں ہماری کانگریس گورنمنٹ آئے بعد انشاءاللہ جیسا کرناٹکا میں پکا وعدہ کیے اور جیسا گورنمنٹ فارم کیے اس پہ فوری امپلیمنٹ کر دیے، ویسے ہی 500 روپے میں سلنڈر دیا جائے گا، جو آج 1200 روپے 1300 روپے ہو گیا ہے۔ اور دوسرے اسکیمات کو ہمارے بڑے صدر پارٹی کے قائدین پبلک کے سامنے لائیں گے۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بات عام ہو جائے عوام میں کہ کانگریس گورنمنٹ آئے بعد میں کوئی اسکیم کو بند نہیں کیا جائے گا۔ کچھ پبلک کو ڈر ہے کہ شادی مبارک بند کر دیں گے۔ یہ شادی مبارک شروعات کانگریس گورنمنٹ کی ہے، اور مائنارٹی کو جو نقصان پہنچائی ہے TRS گورنمنٹ، وہ پورے اسکیمات اور مائنارٹی کے نقصانات بتائیں گے ہمارے سینئر قائدین۔ لہٰذا ہماری عوام الناس سے گزارش ہے، بالخصوص عورتوں سے گزارش ہے، لیڈیز سے گزارش ہے کہ اس جلسے کو سنیے اور سمجھیے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے، بار بار ہم کہہ رہے ہیں
کہ اس جلسے کو کامیاب بنائیے, زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم, اللہ حافظ. ہم جانتے ہیں کہ تلنگانہ اسٹیٹ کے حالات کیا ہے. مائنارٹیز, ایس سی, ایس ٹی, آدیواسی, او بی سیز, ہر کوئی پریشان حال ہے. یہ لوگوں کو لوٹنے کی گورنمنٹ ہے. بی جے پی اور ٹی آر ایس دونوں ایک ہے. دونوں کے ایک ہی کام ہے کہ کس طریقے سے ان طبقوں کو ستایا جائے اسی ہنسنا میں, تاکہ ہم مائنارٹیز, او بی سیز, آدیواسی بھائی, دلت بھائی سب ایک جٹ ہو کر, جس طریقے سے کرناٹک میں جو پنچ پڑا ہے بی جے پی کو اور ان کی ساتھی جماعتوں کو, وہ پست ہو کے نیچے گر گئے. یہ کس کا سپورٹ تھا؟ ہم دلت بھائیوں کا, مائنارٹیز بھائیوں کا, آدیواسی بھائیوں کا. لہٰذا میری ادبند گزارش ہے میری خواتین بہنوں سے, میرے بھائیوں سے, نوجوانوں سے, کہ یہ جلسہ جو 15 تاریخ کو کیا جا رہا ہے نصیر چوراہا احمد پورہ کالونی میں, جو 7 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ, تو میں تمام نظام آباد کے نوجوانوں سے بالخصوص اور بزرگ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں شرکت کریے. ہماری طاقت ہم کو بتانا ضروری ہے. اگر ہم آج ہماری طاقت نہیں بتائیں گے تو ہمارے حالات کیسے ہوں گے؟ کیونکہ دشمن گھات لگا کے بیٹھے ہوا ہے, ہم کو متحد ہونا ہے. کھیلو انڈیا سرکار کی بہترین اسکیم جس کے سبب کئی کھلاڑیوں کو ہو رہا ہے فائدہ. بین الاقوامی خاتون مکے باز نکھت زرین کا ایک ٹی وی انٹرویو سے خطاب. جی ہاں, کھیلو انڈیا کی اسکیم کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو جیسے کہ میں نے کہا, پہلے سال میں ایک کمپٹیشن ہوتا تھا اور اس سے زیادہ ایکسپوجر بھی نہیں ملتا تھا دوسرے کھلاڑی کو, اور جو 3rd رینک کھلاڑی ہوتا تھا. بٹ ابھی ایسا کیا ہے, کھیلو انڈیا گیمز ہر ایوری ایئر ہوتا ہے. اس سے آپ جب ایک میڈل جیتتے ہو تو آپ کو کھیلو انڈیا اسکیم میں نام آتا ہے, اور ایوری منتھ آپ کو منتھلی اسٹائپنڈ ملتا ہے, جس سے آپ کو فائنینشلی آپ کو ایک ٹینشن فری ہو جاتا ہے. آپ اپنے ڈائٹ کے لیے یوز کرتے ہو, ٹریننگ پرپز کے لیے یوز کرتے ہو. تو کھیلو انڈیا اسکیم ایک ایتھلیٹ کے لائف میں بہت بڑا چینج آیا ہے, جس سے ایتھلیٹ اپنے کھلے مائنڈ فری ہو کے اسپورٹ کے اوپر فوکس کر سکتا ہے, اور آگے جو انٹرنیشنل لیول پہ پرفارمنس دینے کے لیے وہ اپنی پوری محنت کوشش وہاں پہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. سپورٹ رہتا ہے اسپیشلی باکسنگ میں. پہلے لڑکیوں کو اتنا پوچھتا نہیں تھا کوئی باکسنگ میں. جب سے میری کام نے اولمپکس میں برونز میڈل جیتا ہے تب سے ویمن باکسنگ کو لوگ نے سیریسلی لینا سٹارٹ کیا. اور میری خود کی سٹوری ایسی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے, جرنی فرام بیٹی ہوئی ہے ٹو بیٹی ہو تو ایسی. تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کے ورلڈ لیول تک اپنے دیش کو ریپرزینٹ کرنا اور دیش کے لیے میڈل جیتنا. اور ہمارے آنریبل پرائم منسٹر جی کا ایک اسکیم ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میں تو یہ کہوں گی کہ مودی جی آپ ایک نیا اسکیم نکالیے, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی کھلاؤ, جس سے اور لڑکیاں آگے آئے گی اور سپورٹس کھیلے گی اور اپنا دیش کا نام روشن کرے گی. اپنی مثالی خدمات سے پہچانے جانے والی تلنگانہ جمیعت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کا ماہانہ تقسیم راشن پروگرام. جنرل سیکریٹری حافظ وسیم خان کی اطلاع کے مطابق شہر نظام آباد کے دین و خدمت دین سے وابستہ طبقے کے گھرانوں میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے سوسائٹی اور اس کے ارکان الحمدللہ ہر ماہ یہ تقسیم راشن پروگرام منعقد کرتی ہے, جس میں پوری رازداری کے ساتھ ضرورت مند گھرانوں تک بنا کسی تصویر کشی و شہرت کے سامان خردونوش پہنچانے کا اہتمام گزشتہ 4 سال سے مسلسل اور مستقل کرتی آ رہی ہیں. اس کے علاوہ رمضان مبارک و بقرعید کے خاص موقع پر خصوصی پیکیج بنا کر دائرہ کار کو مزید وسعت دی جاتی ہے. حافظ واجد نواز صدر سوسائٹی کے خصوصی توجہات سے پوری امانت و دیانت داری کے ساتھ مستحق گھرانوں میں ہر ماہ پابندی سے راشن پہنچایا جاتا ہے. اور اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکریٹری جمیعت علماء نے اس خدمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ بقرعید کے موقع پر یہ سوسائٹی اجتماعی قربانی اور تقسیم گوشت کا بھی نظم پورے حسن و خوبی کے ساتھ کرتی ہے. لہٰذا اہل خیر احباب سے اپیل ہے کہ وہ اراکین سوسائٹی سے رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کریں. مولانا سید سمیع اللہ صدر جمیعت علماء نے بھی اس کام کو سراہا اور تائیدی کلمات سے نوازتے ہوئے اخلاص و استقامت کی دعا دی. حافظ عامر صاحب نائب صدر تلنگانہ جمیعت الحفاظ نے تمامی معاونین کا شکریہ ادا کیا. مولانا اسماعیل عارفی صدر ہر سوسائٹی ضلع نظام آباد مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک رہے. حافظ ابراہیم, حافظ محمد ندیم, حافظ عبدالنعیم, حافظ انیس, حافظ زبیر, مولوی عبداللہ,
وہ دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر مفتی شیخ جابر قاسمی نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم خدمت میں مالی تعاون کرنے والوں کو ہر قسم کی خیر و برکت سے نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینہ مستحقین اور ضرورت مندوں کے اندر جو دینی خدام ہیں یا دین سے کسی بھی طریقے سے وابستہ ہیں، ایسے لوگوں کے گھرانوں تک رازداری کے ساتھ مستقل راشن کے پہنچانے کا اہتمام اور انتظام کر رہی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 3.5-4 سال سے یہ کام جاری ہے اور سال در سال یہ کام الحمدللہ اضافہ اس کے اندر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کام کو قبول فرمائے، سارے ہی خدام کو اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے۔ اس موقع پر بھی بہت سارے تقریباً 30 سے 35 ضرورت مندوں کے گھرانوں کا ٹارگٹ ہے اور اس مہینے کے اندر بھی وہ سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اس موقع پر میں خاص طور پر یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ بقرعید کا موقع ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس ایسے حالات ہوتے ہیں کہ قربانی تو واجب ہوتی ہے لیکن گوشت کی تقسیم کا کوئی ان کے پاس انتظام نہیں ہو پاتا ہے، تو ایسے لوگ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی سے رابطہ کریں، یا تو اپنا جانور ان کے حوالے کریں اور نام ان کو دے دیں، وہ قربانی کر کے گوشت غربا کے اندر سلم بستیوں میں، دیہاتوں میں اور ضرورت مندوں تک گوشت کے پہنچانے کا انتظام بھی ہر سال معیاری اور طور پر علماء کرام کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ جانور بھی یہاں پر دستیاب ہوتا ہے، آپ اگر وہ خرید کر دینا چاہیں یہیں سے تو بھی دے سکتے ہیں، یا اپنے حصص بک کروانا چاہیں تو نام کے ساتھ حصص بھی بک کروا سکتے ہیں، اور رقم دے کر کے ان کے اوپر آپ اعتماد کریں تو یہ اور اچھی بات ہے کہ وہ جانور خریدیں گے اور اپنے پاس اس کو ذبح کرا کر گوشت جو ہے علماء، حفاظ، ائمہ اور بھی جتنے ضرورت مند لوگ ہیں ان تک گوشت پہنچانے کا یہ اہتمام اور انتظام کرتے ہیں۔ عازمین حج کا دوسرا قافلہ کل روانہ ہوگا۔ وسیم احمد خان خازن ہاں سوسائٹی ضلع نظام آباد کے اطلاع کے مطابق کل بتاریخ 15 جون بروز جمعرات صبح 8 بجے کنگز پیلیس فنکشن ہال سے دعاؤں کے ساتھ حجاج اکرام کا دوسرا قافلہ روانہ ہوگا۔ مولانا شیخ اسماعیل عارفی صدر ہاں سوسائٹی، معتمد محمد نصیر الدین، محمد افضل الدین، مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکریٹری جمیعت علماء حافظ مظہر مولوی اکرم محمد صدیق، عبدالباری عمران شریف و دیگر ذمہ داران نے اپیل کی کہ تمام مسلمان نظام آباد اس مقدس سفر حج پر جانے والے حجاج کے اکرام و اعزاز میں شریک ہو کر دعاؤں کے مستحق بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل صبح 8 بجے یعنی کہ بروز جمعرات صبح 8 بجے بمقام کنگ پیلیس فنکشن ہال قلعہ روڈ نظام آباد سے عازمین حج کا قافلہ دعاؤں کے ساتھ اور تلبیہ کی گونج میں انشاءاللہ اپنے مقدس سفر پر روانہ ہونے جا رہا ہے۔ ہر سوسائٹی ضلع نظام آباد مولانا شیخ اسماعیل عارفی صاحب اور دیگر اراکین، ہم سبھی احباب تمام ہی امت مسلمہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مقدس سفر پر جانے والے حضرات کی اعزاز و اکرام میں ان سے دعائیں لینے کی غرض سے آپ تمام احباب کنگ پیلیس فنکشن ہال پہنچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی عازمین اور عازمات کے سفر کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائے۔ دینی مدارس کی نظمہ و اساتذہ کے لیے سنہرا موقع ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکریٹری جمیعت علماء کی استاد مدارس سے اپیل۔ 30 اپریل 2023 رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ تلنگانہ کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس رابطے کے صدر اعلیٰ خدیر حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت ادارہ اشرف العلوم سعید آباد میں صدر عالی خدر حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت ادارہ اشرف العلوم سعید آباد میں منعقد ہوا، جس میں حیدرآباد سمیت ریاست کے مختلف اضلاع سے اراکین گرامی قدر اور مدعوین خصوصی شریک ہوئے۔ قدر اور مدعوین خصوصی شریک ہوئے۔ اجلاس میں طے کیا گیا کہ رابطہ مدارس اسلامی عربیہ دارالعلوم دیوبند کا بنیادی مقصد نظام تعلیم و تربیت کو مستحکم بنانا بھی ہے، لہٰذا ریاستی رابطے کے تحت مربوط مدارس کی ابتدائی عربی جماعتوں نیز حفظ و مناظرہ کے اساتذہ کی تربیت کے لیے 2 روزہ تربیتی کیمپ بتاریخ 18 جون 2023 کی تجویز منظور کی گئی۔ اس اہم پروگرام کا انعقاد مدرسہ سبیل الفلاح بنڈالہ گڑا میں ہونے جا رہا ہے، جہاں تمام تر سہولیات مہیا رہیں گی۔ ورکشاپ کی انعقاد کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ درج ذیل علماء کرام کے گرا قدر محاضرات ہوں گے انشاءاللہ حضرت مولانا اشفاق احمد صاحب پرتاپ گڑھی، استاد دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد ہریدواری، ناظرین تعلیمات دارالعلوم
देवबंद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रियाज अहमद साहब, साबिक नाज़िम मदरसा मुफ्ता उलूम मेल व शार मदारिस मोहतरम मुफ्ती मुजाहिद खान साहब, उस्ताद अफ्ता दारुल रहमानिया हैदराबाद, मोहतरम मुफ्ती उसामुद्दीन साहब, उस्ताद मदरसा खैरुल मदारिस हैदराबाद, मोहतरम मुफ्ती रफ़त रिजवान साहब खासमी, उस्ताद मदरसा इमदादुल उलूम तीन पोश, मोहतरम मुफ्ती मुजीबुर रहमान अतीक साहब नदवी, असातिज़ा दारुल इमाम रब्बानी निरल मुंबई, मोहतरम मुफ्ती अबू बकर जाबिर साहब खासमी नाज़िम मदरसा कैफुल ईमान ट्रस्ट हैदराबाद और मोहतरम मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब खासमी उस्ताद दारुल इमाम रब्बानी नीरल मुंबई बराए हिफ्ज़ व नाज़रा, मोहतरम हाफिज़ बुखारी यूनुस साहब हानोस्ट गुजरात, मोहतरम मौलाना हुज़ैफ़ा साहब हानसोट गुजरात, मोहतरम हाफिज़ बुखारी सईदुल रहमान साहब टमकुर, मोहतरम हाफिज़ बुखारी अबूज़र साहब दारुल रहमानिया हैदराबाद वगैरह। तमाम नज़्म मदारिस से दरख्वास्त है कि इस ज़रीन मौके से फ़ायदा उठाकर मदारिस के निज़ाम तालीम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा को शरीक इजलास होने का मतलब करे। मुल्क के लिए मिसाली तेलंगाना तिब्बी शोबा, CM KCR की क़यादत में तिब्बी शोबे में इख्तिराई इनकलाबी तब्दीली आने का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। जिले के मुकाम पर वाक़ हॉस्पिटल में मुनक़दा यौम तिब व सेहत पर मबनी प्रोग्राम में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहदा रियासत में खस्ताहाली का शिकार हॉस्पिटल आज जदीद तरीन सहूलत के साथ मुल्क के लिए मिसाली हो गए हैं। रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से तिब्बी मैदान में इनकलाबी तब्दीली लाई गई है और तिब्बी अमले की कोशिश से मुल्क में तेलंगाना तिब्बी मैदान मजीद आगे बढ़ रहा है। आज रियासती वज़ीर आला KCR 2000 बिस्तरों के निम्स हॉस्पिटल से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम देंगे। इस प्रोग्राम में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, महिला कमीशन मेंबर श्रीमती सुदम लक्ष्मी, GGH सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमराजू दिगर ने शिरकत की। చాలా రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, చాలా రకాలైనటువంటి వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. దేవుడితో పోల్చేటటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కేవలం డాక్టర్ మాత్రమే. హిందువులైతే దేవుళ్ళని మొక్కుతారు, ముస్లింలైతే అల్లాహ్ని మొక్కుతారు, క్రైస్తవులైతే జీసస్ని మొక్కుతారు లేదా మేరీ మాతను మొక్కుతారు. కానీ అందరూ కలిసి మొక్కే ఏకైక దైవం ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది డాక్టర్ మాత్రమే. ఇంతకుముందు ఒక ఆమె వచ్చింది, ఆమెకు హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళ భర్త వచ్చి మాట్లాడాడు. ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ ఎమోషన్లో నేను భార్యను కాపాడుకోవాలి, నా బిడ్డను కాపాడుకోవాలి అనేటటువంటి ఆ ప్రయత్నంలో ఆయన చెప్పిండు. చివరికి ఆయన బిడ్డ పేరు కూడా డాక్టర్ ప్రతిమ పేరు పెట్టుకున్నాడు. ఎవరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో నూడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి, మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలు సూదం లక్ష్మి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి పర్యవేక్షకురాలు డాక్టర్ ప్రతిమరాజ్, ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఇందిరా, DMHO సుదర్శనం, BRS కార్పొరేటర్లు, నాయకులు పాల్గొన్నారు. मागलूर मंडल रामचंद्रपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कुरमा यादव संगम से वाबस्ता अरकान CM KCR के फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर ज़िले BR सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर मागलूर मंडल रामचंद्रपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कुरमा यादव संगम से वाबस्ता अरकान आर्मर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा ज़िले BR सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद TRS पार्टी बरसर इक़्तिदार पर आई और तेलंगाना की हमजहत तरक्की के एक रोशन बाब का आगाज़ हुआ। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए TRS हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करे। BRS की स्कीमात अहद से लहद तक है, जिसके ज़रिए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सबको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में किसी न किसी स्कीम से हर फर्द मुस्तफ़िद हो रहा है। ये KCR की बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी का वाज़ेह सबूत है कि चंद्रशेखर राव इंसानियत नवाज, हमदर्द और एक आला शख्सियत के मालिक है। इन्होंने अपनी हुक्मरानी के ज़रिए अवाम के क़ल्ब को फ़तेह कर लिया है। आज तेलंगाना अवाम के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान की कैफियत है, जो कि चंद्रशेखर राव की सलाहियतों की बेहतरीन दलील है। KCR हुकूमत फलाही स्कीमात के अजीम तस्वुर को अमली तौर पर पेश किया। अलहदा रियासत की तश्कील से क़ब्ल तेलंगाना नाइंसाफ़ियों का शिकार था। आंध्राई हुक्मरानों ने तेलंगाना की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया था। तेलंगाना की कुदरती वसाइल को लूटा जा रहा था। तेलंगाना के नौजवान रोज़गार के मुतलाशिर थे। ऐसे हालात में के चंद्रशेखर राव ने एक अजीम मकसद के तहत अलहदा रियासत तेलंगाना का परचम बुलंद किया। KCR ने तेलंगाना तहरीक को जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ाया। कभी कभी तशद्दुद के रास्ते को इख्तियार नहीं किया, बल्कि अवाम तशद्दुद के उसूलों पर अमल करते हुए रियासत तेलंगाना को हासिल के। तेलंगाना तश्कील के बाद कई दरपेश
चैलेंजेस का सामना था। केसीआर ने अज़्म व हौसले के साथ तमाम हालात का मुकाबला करते हुए तमाम मसाइल को हल किया। आज रियासत तेलंगाना तमाम महज़ों पर तरक्की की सिमत गामज़न है, तो इसका सहरा सिर्फ और सिर्फ केसीआर को जाता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत का नतीजा है कि रियासत तेलंगाना खलील अरसे में तरक्की की बुलंदियों पर पहुँच गई है। केसीआर की मिसाली और इख्तिराई स्कीमात काबिल तलक़ीद है। हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए दूसरी रियासतों के अवाम रश्क कर रहे हैं और इसी तरह से हुक्मरानों की ख्वाहें मरकजी हुकूमत भी टीआरएस हुकूमत की फलाई स्कीमात पर अमल कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आलमी सतह पर एक ताकतवर क़ायद के तौर पर पहचाने जाने का इजहार किया। सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल के आरएमपी डॉक्टर एसोसिएशन से वाबस्ता अरकान ने जिले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर आज नंदीपेट मंडल के आरएमपी डॉक्टर एसोसिएशन से वाबस्ता मेंबरान ने जिले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी कंडवा पहनाते हुए खैर मक़दम किया गया। इस मौके पर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लिया तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामज़न हो गई। हर दिन तरक्याती काम अंजाम दिए जाते हैं। केसीआर हुकूमत ने अवामी खिदमत को अपना मकसद और अपना मिशन बना लिया। रियासती हुकूमत ने कई फलाई स्कीमात शुरू की। मुस्तहिक़ अफराद और गरीबों के लिए कई स्कीमात को आगाज़ किया गया। रियासत में आपाशी प्रोजेक्ट बनाए गए। मुतहदा रियासत आंध्र प्रदेश में पीने के पानी का बड़ा मसला होता था। कई इलाकों में कई दिनों तक पानी नहीं आता था। अवाम को बड़ी दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पानी ना होने के सबब किसान खुदकुशी कर रहे थे। इन हालात को देखते हुए केसीआर ने पानी की इन परेशानियों और मुसीबतों से निपटा और कुछ ही अरसे में इस पर पूरी तरह काबू पा लिया। और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत का एक और अजीम तरीन कारनामा कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जिसकी मिसाल सारे मुल्क में नहीं मिलती। मुतहदा रियासत में बरक़ी का बड़ा मसला हुआ करता था। रोज़ाना 2-3 घंटे बरक़ी मसदूद कर दी जाती थी। केसीआर हुकूमत ने इस मसले पर भी फौरी तौर पर काबू पाते हुए बिला वक़्फ़ा बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद थे। इसीलिए केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात को बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। और बेघर अफराद के लिए केसीआर हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात मुफ्त फराहम किए हैं। ग़लतिया ख़मती स्कूल्स की मिसाल भी सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ किया, जिसके तहत गरीब लड़की शादी में 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं। केसीआर साहब की जानिब से शुरू की गई स्कीमात की फहरिस्त काफ़ी तवील है, जिनमें 5 रुपये में खाना, आरोग्य लक्ष्मी स्कीम, डबल बेडरूम मकानात, आमा मौजूदीन को माहाना इजाज़ी आसरा पेंशन स्कीम, स्कॉलरशिप बराए तलबा, आरोग्य लक्ष्मी मिशन काकतिया, केसीआर किट बेसहारा अफराद के लिए माहाना वज़ाइफ, बेरोज़गारी भत्ता, रैयत बंधु स्कीम वगैरह काबिल ज़िक्र होने का इजहार किया। सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात से मुतासर होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले बीजेपी वार्ड मेंबर गंगा रेड्डी को एमएलए जीवन रेड्डी ने गुलाबी खंडवा पहनाते हुए किया खैर मक़दम। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर गोट्टी मुकाला देहात के बीजेपी वार्ड मेंबर गंगा रेड्डी एमएलए जीवन रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इन्होंने पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मक़दम किया और सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर कई पार्टियों से वाबस्ता कायदीन और मशहूर शख्सियात बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले परिषद चेयरमैन विठल राव, एमपीपी मास्टर प्रभाकर, वाइस एमपीपी सुधाकर, मौजे के सरपंच प्रवीण, एमपीटीसी रवि, बीआरएस पार्टी के कायदे नौजवानों के अलावा मौजूदात के मुकामी अवाम ने शिरकत की। నన్ను కన్న నా తల్లిదండ్రులు నాకు అవిటివారిగా పుట్టిన నేను దివ్యాంగులమైన నాకు చేతు కాళ్ళు లేవు. నా ఇంటర్లు నన్ను చూసుకోకుండా కానీ నా పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ నాకు 3,116 నుంచి 4,116 రూపాయలు పెంచిండు. అందుకోసమే మేమంతా సార్తో ఉంటాం, కారుతో
నేను నీకే గుర్తు పెట్టా. నాకు చేతి మంచి లేకుండా అందరికి దండం పెట్టి కాళ్ళు మొక్కైనా కేసీఆర్ గెలిపిస్తా. माधव नगर रेलवे ओवरब्रिज के लिए रियासती हुकूमत 60 करोड़ रुपए फंड से मुख्तस करने पर मरकजी हुकूमत की जानिब से सिर्फ 30 करोड़ रुपए ही देने का TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल मंडल पालदा ग्राम पंचायत भवन का TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने इफ्तिताह मिलाया। इस मौके पर रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में जारी तरक्याती कामों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी अमल में लाने के लिए ताल्लुक़ से BJP कायदीन की जानिब से किए जा रहे प्रोपगंडे में कोई सच्चाई नहीं है और अगर मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही तो तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात दीगर रियासतों में क्यों नाफिज नहीं किए जा रहे। इस ताल्लुक से अवाम को सवाल करने की तजवीज़ थी। माधव नगर रेलवे ओवरब्रिज के लिए रियासती हुकूमत 60 करोड़ रुपए फंड से मुख्तस करने पर मरकजी हुकूमत की जानिब से सिर्फ 30 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई, लेकिन इस ताल्लुक से मुकामी MP D अरविंद रेलवे ब्रिज की इन्हीं की मेहनत की वजह से तामीर अमल में लाए जाने के ताल्लुक से मुकामी अवाम को आगाही करवाना जो कि सरासर गलत होने का इजहार किया। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि इनके हलके में वाक़ पालदा ग्राम पंचायत बेहतरीन पंचायत अवार्ड हासिल करने को काबिल फ़ख्र करार दिया और इसी तरह से माबाक़ी देहात को भी एकसा तौर पर बरक़ी दी जा रही है और सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से कल्याण लक्ष्य में शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ किया गया है, जो कि मुस्तहिक़ लड़कियों के लिए एक तोहफे के तौर पर तब्दील हो गया है और KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में गरीब अवाम के मसाइल के इक्सी के लिए मुतारफ़ किए गए आशा पेंशन स्कीम के तहत बीड़ी मजदूर तनहा ख़वातीन व दीगर को हर माह पाबंदी के साथ वजीफे की फराहमी अमल में लाई जा रही है और किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी देने वाली रियासत सिर्फ रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP अनुषा, ZPTC सुमलता, सरपंच सुप्रिया, MPTC मेम्बरान ममता, नोडा डायरेक्टर संतोष, पार्टी मंडल सदर मधुकर व मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा नायब सरपंच, MPTC सोसाइटी चेयरमैन, सोसाइटी डायरेक्टर, बियाल्स पार्टी व कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। ఈ రాష్ట్రంలో దేశం పరిపాలించే ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రంలో వాళ్ళు ఇచ్చే పెన్షన్ 700 రూపాయలు, 2000 కాదు. ఇవాళ ఆశా వర్గాల జీతాలు కూడా 9000 రూపాయలు ఇస్తాం. బాబు మనకు అంగన్వాడీ వర్కర్లే మనం 13000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. ఇవాళ ఇంత బాగా నడిపిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారు భారత రాష్ట్ర సమితిని పెట్టిండు. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే నా రాష్ట్రంలోని ఇవన్నీ జరుగుడు కాదు, మొత్తం భారతదేశంతో కూడా జరిగితే బాగుంటారు ఉద్దేశంతో భారత రాష్ట్రంలోని నేషనల్ పార్టీ పెట్టిండు ఆయన. ఇలా మన మహారాష్ట్ర తిరుగుతున్నాం, మధ్యప్రదేశ్లో వచ్చారు. దేశం మొత్తం కూడా మన పార్టీ తప్పకుండా వస్తుందనే నమ్మకం నాకుంది. కానీ ఇలా నేను చూసిన ఫోటోలు కూడా మన జిల్లాలో పుట్టిన పుట్టచరుగాడు కూడా గుండుగాడు. जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में यौम तासिस तेलंगाना दाही तकारीब के तहत शहर के एक फंक्शन हॉल में मुनाक़दा यौम तिब व सेहत पर मबनी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा में रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत शहर के मीना गार्डन में मुनाक़दा यौम तिब व सेहत पर मबनी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद हासिल किए गए तरक्की व फवायद के बारे में अवाम को वाकिफ करवाने के मकसद के तहत यौम तासिस तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया है और हर साल प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। खानगी हॉस्पिटल में इलाज मुआलजा महंगा होता है, जो कि गरीब अवाम माशी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए रियासती हुकूमत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तोसी व जदीद बनाते हुए जदीद आलात दस्तियाब में लाकर अवाम को मियारी तिबी इमदाद फराहम कर रही है। इसी तरह से रियासती हुकूमत ने रियासती बजट में महकमे तिब व सेहत को 11,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं और निम्स हॉस्पिटल के लिए अब तक 2,000 बिस्तरों की गुंजाइश होने पर आज जी 2,000 बिस्तरों की तोसी का रियासती वज़ीर आला KCR ने सही बुनियाद रखा और हर मंडल के मुकाम पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए बांसवाड़ा शहर में 2 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया गया है और इसके अलावा वर्नी में 10.70 करोड़ रुपए की मसारिफ से तामीर करने वाले 30 बिस्तरों का हॉस्पिटल को कोटगिर में 13 करोड़ रुपए तामीर करने वाले 50 बिस्तरों के हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा गया है। ఉండాలి, అయితేనే రాష్ట్రం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. తల్లిబిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే దేశం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య శాఖ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత శాఖ. సంవత్సరానికి పేషెంట్ల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది.
సంవత్సరానికి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల సంఖ్య రెట్టింపు, మూడింతలు, నాలుగంతలు అవుతా ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ దవాఖానాల సంఖ్య పెరుగుతుందంటే పేషెంట్ల సంఖ్య పెరుగుతున్నట్టే లెక్క. చాలా మందికి అనుభవం ఉంది. లక్షల తప్పితే వేలన కాదు అది. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల సంఖ్య పెరుగుతున్న కొద్దీ కోట్లాది రూపాయలు ప్రజల ధనం ఖర్చు అవుతా ఉంది. వీటంతా ఆలోచించుకొని ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రకరకాల పరికరాల కోసం ప్రైవేటు దవాఖానలో ఏ పరికరాలు ఉన్నాయో ఆ పరికరాలు సమకూర్చడానికి కోసం నిమ్స్ దవాఖానకు 1500 కోట్ల రూపాయలతో నిమ్స్ ఆసుపత్రి, ఇప్పటికే 2000 పడకల ఆసుపత్రి ఉంటే మరొక 2000 పడకల ఆసుపత్రికి ఈ రోజే శంకుస్థాపన జరిగింది వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారి చేత. అంటే భారతదేశంలోనే 4000 పడకల ఆసుపత్రి ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రి నిమ్స్ పేరు పొందబోతా ఉంది. దేశంలో 4000 బెడ్ ఆసుపత్రి ఎక్కడ లేదు. త్రూఅవుట్ కంట్రీ 2000 బెడ్లతో 8000 బెడ్లతో మరొక 4 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి రాబోతా ఉన్నాయి. ఈరోజు రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో 2,90,000 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఉంటే అందులో దగ్గర 13,000 కోట్ల రూపాయలు మెడికల్ కే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కేటాయించాం. దేశంలో ఈ రాష్ట్రం కూడా వైద్య रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद रियासत में कॉर्पोरेट सतह से जायद मियारी इलाज मुआवजा अवाम को दस्तियाब होने का जिले बिहार सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत आर्मूर के 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रियासती हुकूमत की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए आर्मूर हल्के सतह के यौम तिब व सेहत पर मबनी प्रोग्राम में जिले बिहार सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सरकारी हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट सतह से जायद अवाम को मियारी तिबी इमदाद फराहम की जा रही है, जिससे अवाम की कसीर तादाद सरकारी हॉस्पिटल से रुजू होने का इजहार किया। 10 साला जश्न तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर आर्मूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर मुनाकिद किया गया तकरीब का अहतमाम। तेलंगाना यौम तासीस 10 साला जश्न तकरीब के मौके पर आर्मूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महकमे यौम तिब सेहत प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनाकिद किया गया। मेहमान खुसूसी जिला कलेक्टर और रुकन असम्बली ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में आर्मूर एरिया हॉस्पिटल और यूपीएससी आर्मूर में खिदमत अंजाम देने वाले फार्मासिस्ट को डिस्ट्रिक्ट बेस्ट फार्मासिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। आर्मूर के शहर पैकेट से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मुंशी मीर इनायत अली फार्मासिस्ट महकमे सेहत को इनकी 10 साल बेहतरीन खिदमत को देखते हुए जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव हनुमंतु और रुकन असम्बली आर्मूर व पीयूसी चेयरमैन जिले सदर जीवन रेड्डी के हाथों डिस्ट्रिक्ट बेस्ट फार्मासिस्ट अवार्ड अता किया गया। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि तेलंगाना के वजूद में आने के बाद आर्मूर हॉस्पिटल को रियासती सतह पर 2017 में नंबर 1 अवार्ड दिया गया। इस वक्त फार्मासिस्ट के खदमात अंजाम देने वाले और कोविड के 2 साल में वैक्सीन ड्यूटी अंजाम देने वाले वाहिद फार्मासिस्ट जनाब मुंशी मीर इनायत अली की ज़िले की सतह पर खिदमत की सराहना करते हुए इन्हें बेस्ट फार्मासिस्ट तौसीफ़नामे से सरफराज किया गया और मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर मुंशी मीर इनायत अली ने जिले कलेक्टर रुकन असम्बली व महकमे सेहत के जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। मुंशी मीर इनायत अली को बेस्ट फार्मासिस्ट अवार्ड दिए जाने पर रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब व महकमे सेहत का अमला, सहाफ़ी और मुख्तलिफ गोशों से इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही। इस मौके पर जिले परिषद चेयरमैन डी विठल राव, डॉक्टर मधुशेखर, सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नागराजू, आर्मूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाकिर दीगर मौजूद थे। ఆసుపత్రి జరిగితే అత్యధికంగా ఒక నెలలో 450 మందికి చేసే దవాఖానా ఆర్మూర్ దవాఖానా ఆ డాక్టర్లు వీరే. అది ఇది ఇవ్వడానికి మన ముఖ్యమంత్రి కర్త కర్మ కేసీఆర్ గారు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీరందరూ దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. వేలాది మందికి ఉచితంగా కంటి పరీక్షలు చేసి ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ ఐ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఎక్కడన్నా ఏదైనా ఒక రాష్ట్రంలో ఒక ప్రాంతంలో జరిగినట్టే అవి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇది కూడా ఇనాగ్రేషన్ చేస్తా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా మనందరి తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ భారతదేశంలోనే కలివిని ఎరగని రీతిలో అభివృద్ధి, సంక్షేమ, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో ముందున్నామంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. కంటి వెలుగు కార్యక్రమం
అదేవిధంగా మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా డెలివరీస్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మన జిల్లాలో చూసుకుంటే 100% డెలివరీస్ కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మీరు గ్రామాల్లోనే డోర్కి వెళ్ళి కూడా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల కూడా మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో సేఫ్ డెలివరీస్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో మీరందరూ కూడా ఇదే విధంగా ఈ టెంపోని మెయింటైన్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ రాష్ట్ర పురోగతిలో భాగస్వాములైన మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. शौहर की जानिब से जायद जहेज के लिए हरासा करने के बायस इनकी अहलिया श्रावंती ने शौहर के घर के सामने इंसाफ फराहम करने के लिए एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। भीमगल के मुकाम पर वाक़ चैनगल देहात में शौहर के घर के सामने इनकी अहलिया एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। 8 साल कब्ल बड़ों की मौजूदगी में रस्म रिवाज के मुताबिक वो ताहफ़ देते हुए शादी करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी शौहर की जानिब से जायद जहेज के लिए हरासा करने के बायस मायके चले जाने वाली श्रावंती का शौहर नवीन गौड़ दुबई जाकर वापस अपने आबाई मुकाम आने वाला शौहर अपनी बीवी को अपने साथ न ले जाने की वजह से बुजुर्गों की मौजूदगी में शौहर से मशावरत की गई, तब भी शौहर की से इनकार किए जाने से इनकी अहलिया श्रावंती ने अपने शौहर के घर के सामने इंसाफ फराहम करने के लिए एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। बोधन में वाक़ मरकजी तालीमी इदारे से वाबस्ता कामों का बीजेपी राज्यसभा MP प्रकाश जावड़ेकर ने लिया जायजा। बीजेपी राज्यसभा MP प्रकाश जावड़ेकर बोधन में वाक़ मरकजी तालीमी इदारे से वाबस्ता कामों का जायजा लेते हुए कामों की सुस्त रफ्तारी पर बरहमी जताई और कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 20 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बावजूद भी इससे मुताल्लिक़ा काम सुस्त रफ्तारी से जारी रहने से एजेंसी को तब्दील करने के लिए रिपोर्ट देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ जिले MP D अरविंद भी मौजूद थे। 9 साल पूरे होने पर देश में जगह जगह जिस तरह से काम हो रहे हैं उसको भी हम देख रहे हैं। जैसे हाईवे को हम कल गए थे, बढ़िया काम चल रहा है, समय में पूरा होगा। 1 लाख करोड़ के खर्चे से लगभग 2500 किलोमीटर का हाईवे 6 लेन का वो तैयार हो रहा है तेलंगाना में। आज़ादी से अभी तक केवल 2500 किलोमीटर बने थे, अब ये 9 साल में। शहर निजामाबाद में वाक़ रेलवे स्टेशन में रेलवे हमाली यूनियन कायदीन से बीजेपी MP प्रकाश जावड़ेकर ने इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल से की वाक़िफियत हासिल। जिले निजामाबाद के मुकाम पर बीजेपी MP प्रकाश जावड़ेकर ने शहर के रेलवे स्टेशन में रेलवे हमाली यूनियन कायदीन से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए इनसे मुताल्लिक़ा वाक़िफियत हासिल की और इसी तरह से सरस्वती नगर में वाक़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट तिब्बी अमला डॉक्टर श्री शैलम हॉस्पिटल में बीजेपी MP प्रकाश जावड़ेकर की जानिब से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया डॉक्टर श्री शैलम बीजेपी कायदीन मौजूद। सरकार के 9 साल पूरे होने के निमित्त हम देश भर में महाजन संपर्क अभियान कर रहे हैं। तो मैं आज निजामाबाद रेलवे स्टेशन के गुड्स सेक्शन में आया हूँ। यहाँ मुझे सैकड़ों जो पोर्टर है जो माल ढुलाई का काम करते उतारने का और साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वह क़रीब मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में BRS पार्टी को सबक सिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार हवाले करने की साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने की ख्वाहिश। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ तड़गामा अभंगापट्टनम महंतनम देहात में साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने दौरा करने के दौरान मार्केट कमेटी के साबिक़ा वाइस चेयरमैन मौसरा साई रेड्डी, यूथ कायद नीति कुंटा गोपाल, संजीवा रेड्डी के साथ 50 अफराद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत 9 साला दौर इक़्तिदार में तमाम शोबेजात में नाकाम हो गई और मरकज़ की बीजेपी रियासत की TRS पार्टी कीमतों में बेतहाशा इजाफा करते हुए अवाम पर भारी बोझ आयद करने का इजहार किया। आदमर हल्के के मंडल में वाक़ रामाचंद्रपल्ली देहात का MLA जीवन रेड्डी ने किया दौरा।
जिले बिहार सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आर्मूर हल्के में वाक़ रामचंद्र पल्ली का दौरा करते हुए मुख्तलिफ टीआरएस कायदीन को पुरसदिया बातजा आलूर कलेड़ी देहात के दरमियान में जारी रोड से वाबस्ता कामों का एमएलए जीवन रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कामों को मियारी तरीके से फिलफुल मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ मौजूद से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे व कायदीन मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के इन सुर्खियों पर। हर साल रियासत में खानगी हॉस्पिटल में इजाफा हो रहा है। रियासती हुकूमत प्राइवेट के बिल मुताबिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तोसी अमल में ला रही है। बांसवाड़ा के मीना गार्डन में यौम तीब व सेहत पर मबनी प्रोग्राम से तेलंगाना कानून का स्पीकर पोचुराम निवास दी। माधव नगर रेलवे ब्रिज के लिए रियासती हुकूमत 60 करोड़ रुपए फंड से मुख्तस करने पर मरकजी हुकूमत की जानिब से 30 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। निजामाबाद रूरल मंडल के पालदा ग्राम पंचायत का टीएसआरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इफ्तिताह। आर्मूर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल में इनेकात अमल में लाए गए यौम तीब व सेहत प्रोग्राम से जिले बिहार सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया खिताब। बोधन में मरकजी तालीमी इदारे से वाबस्ता कामों को तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल करे। सुस्त रफ्तारी के साथ जारी कामों का बीजेपी राज्यसभा एमपी प्रकाश जावड़ेकर ने जायजा लेते हुए किया बरहमी का इजहार। कोरोना वबा कहर के दौरान तिब्बी हमले की जानिब से फराहम करदा खिदमत काबिले सताइश। निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने मरीजों को फ्रूट व हामिला खवातीन को केसीआर किट की फराहमी। आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में अवाम कांग्रेस पार्टी को अहमियत देंगी। नवी पेट में साबिक़ वज़ीर पीसीसी खजानची सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।